So, so hello, my dear student. Welcome to the chemistry classes. Okay. So now we are going to discuss the some important concept related to mole concept. Okay. Some important mole concept. Okay. So in this chapter we will discussing some important concept, that is mole concept. So first of all we will discuss the what is mole and how to calculate the mole. Okay. This one is our first task. Okay. So let's explain what is mole. Okay. So mole, anyone you ask what is mole. Okay. So you can say that mole, that is the amount of a substance. It is what is, it is the amount of a substance. So you write a mole is an amount of substance, amount of substance that has many species, that has many species, yeah, molecules, that has many particles. Okay. Mole, that is the amount of a substance that has many particles. Okay. Many particles. And that particles, here particles may be atoms. So पार्टिकल यहाँ क्या हो सकता है, आपका एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है ना, आयंस भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, प्रोटॉन भी हो सकती है ना। सो ये क्या है, पार्टिकल्स, क्या आपका पार्टिकल्स। ओके। प्रेजेंट इन, देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रेजेंट इन 12 gram of C12 isotope. So we write here, see, important is that is 12 gram of C12 isotopes, C12 isotopes. So यहाँ से मोल का डिफिनेशन निकल के आया है कि मोल क्या है, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स को मैंने क्या माना, एटम्स भी मान लिया, मॉलिक्यूल्स भी मान लिया, आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है 12 ग्राम। ओके। शो बीच वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज 12 gram of C12 isotope. So first of all, there is some confusion about what is isotopes. Isotopes. See, isotopes is the isotopes means same atomic number. We write here as same atomic number, but different mass number. Okay. Different mass number. Okay. As you take the example, that is isotopes, carbon has the isotopes C12, C13 and C14. Okay. So see here, atomic number of carbon is 6. So 6, 6, 6. When you observe, atomic number is same, but mass number here, that is mass number 12, 13 and 14. So mass number is different. So this one is the isotopes of the carbon. Okay. So this one is the isotopes of carbon. Okay. So we will discuss. तो हमने पढ़ लिया कि आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर। ओके। सो ये क्या है, आपका आइसोटॉप्स है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मोल का डिफिनेशन कैसे उठ के आया, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सो मास ऑफ one atom. Okay. So mass of one atom of C12. So C12 का एक एटम का मास जो होता है ना, वो फिक्स होता है, दैट इज 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, इतना ग्राम ऑफ कार्बन के पास वन एटम होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं कैसे लैंग्वेज में लिखता हूँ, सी 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन
which carbon? Carbon 12, 13, 14. So in mole definition it is taken carbon 12. So 1.99 into 10 की power minus 23 gram of carbon 12, okay, has one atom, has one atom. So therefore you study in the unitary method for 1 gram, okay. So for 1 gram of C12 has 1 upon 1.99 into 10 की power minus 23. So therefore, for how many gram? See in the statement it will say 12 gram. So for 12 gram, so right here for 12 gram. So 12 gram of C12 atom has 1 by 1.99 into 10 की power minus 23 into 12, ओके। सो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्या करना है, ठीक है। अब 10 के पावर माइनस 23 ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 12 अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 है, वो ऊपर जाए क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 23। सो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है, ग्राम या एटम है। देखो आपने एटम निकाला है तो ये क्या आपका एटम है। तो बहुत एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आया माय डियर स्टूडेंट कि 1 मोल दैट इज इक्वल टू, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल जो होता है वो कितने के बराबर होती है, 1 मोल दैट इज इक्वल टू, नो नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू, अगर आप समझ गए तो ठीक है। ये तो आपको ये याद रखना है कि एक मोल जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होता है, ठीक है। कोई भी पूछेगा माय डियर एक मोल बराबर क्या होता है, तो बोलोगे एक मोल जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 20। सो आप क्या बताओगे, एक मोल जो क्या किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं इसे, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर, ओके। सो एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दिया था जिसे हम लोग सिंबल क्या देते हैं, एन ए। सो कहीं पे एन ए का मतलब क्या होता है, 6.023 10 टू पावर 23 एटम्स। तो यहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू एन ए एटम्स। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो एन ए लिख दो सिंपली, कोई नंबर 6.023 लिखने की जरूरत है ही नहीं। बट अगर कैलकुलेशन करके आंसर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखने होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स डिफिनेशन हो गई मोल की। तो कोई भी आपसे पूछे 1 मोल क्या होता है, 6.023 10 टू पावर 23 एटम्स। और ये मैंने बता दिया कहाँ से आया, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर ओनली फॉर योर नॉलेज पार्ट ऑफ यू, ओके। सो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, सो दिस वन इज फॉर नॉलेज पार्ट ऑफ यू। सो एनीवन हु आस्क definition what is mole, so you will explain in this manner, okay. So this one is a good example explanation of definition of mole, okay. And 1 mole that is equal to 6.02 10 to the power 23 atom, okay. So our next part is to how to calculate the mole. First of all we understand what is mole, okay. So next task is to how to calculate the mole. So we write here as calculation of mole, calculation of mole, okay. So calculation of mole. So first one, so mole calculation be categorized into 3 cases, okay. So first cases we take as case 1, if mass is given, you know the mass, if mass is given, देखो केमिस्ट्री मास इज गिवन, केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होता है, याद रखना। अगर मास ग्राम में ही लेते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि जो भी पार्ट्स लेते हैं सब कोई स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग ग्राम में ही लेते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मास दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको मास दे रखा है तो मोल कैसे निकालोगे। तो देखो अगर इफ मास इज गिवन या आपसे मास पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू
मास अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बट अब आवर नेक्स्ट टास्क टू फाइंड सर हाउ टू फाइंड, सो आपका क्वेश्चन आ रहा है उधर से कि सर मुझे बताओ, मास तो दे रखा होगा, चाहे मास पूछेगा बट मोल निकालेंगे, बट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, वो तो मुझे नहीं आता मॉलिक्यूलर मास निकालने। सब तो फंडा फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर मास के लिए डियर सी हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remember some of the molecular mass. Suppose we have given the, so you know 1 to 20 atomic number and the atomic mass you have to remember. Suppose we have a hydrogen, so hydrogen for H, and so here we write the atomic number, okay. So atomic number, and here we write the atomic mass, okay. Atomic mass, okay. So you have to be remember some of the 1 to 20 atomic number. So atomic number is 1, atomic mass is also 1. So when we talking to hydrogen, helium, okay, so we are talking some of the important, okay. So you can remember carbon, oxygen, okay, and sulfur. So you know carbon has atomic number of 6 and atomic mass is 12, okay. Oxygen has atomic number of 6 and atomic mass is 16, and sulfur has sulfur has atomic number 16 and atomic mass 32, okay. So this one is the somehow you can remember 1 to 20 atomic number: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, okay. So let's see how to solve. Suppose we have given the first one H2O and you have to find the molecular mass of H2O. See how to solve. See, there is a hydrogen, so see what is the atomic mass of hydrogen, 1. So atomic mass will be 1, so we write here 1. But how much hydrogen it is here, it is कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सो यहाँ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2। हमेशा याद रखना, दो एलिमेंट एटम के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ 2H हो गया, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास 2, तो 1 into 2, और ऑक्सीजन है तो बीच में क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, है ना, प्लस मीन्स एडिशन। और बताओ ऑक्सीजन है कितना होता है एटॉमिक मास, 16, तो यहाँ क्या हो गया आपका 16। सो देयरफॉर 2 plus 16 that is 18, ओके। सो 18 आपका क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, क्या आ गया 18 ये इसका मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया आपका 18। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपका CO2 है, तो मुझे ये बताओ माय डियर स्टूडेंट कि CO2 का क्या होगा, जल्दी बताओ। We have 2 minutes, okay. Solve the question. So what is the molecular mass of CO2? चलो देखो, कार्बन है, कार्बन का कितना होगा, आप देखो यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास लेना है, हमेशा मॉलिक्यूलर मास में मास लेना है, ना कि एटॉमिक नंबर लेनी है। ये गलती करोगे पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएगी, इवन यहाँ से लेके इवन 12th क्लास तक, ठीक है। इसको याद रखना, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमेशा एटॉमिक मास लेते हैं। सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, सो वी राइट हियर कार्बन 12, देयर इज ओनली 1 कार्बन, सो वी राइट हियर 12 into 1 that is 12 प्लस, ओके। सो ऑक्सीजन है, नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है जल्दी देखो यहाँ पे 16 into 2 कितना हो गया 32, सो वी एड 16 into, एक का 16 है पर 2 है तो 16 into 2 that is 12 plus 32, we write here as 4 that is 44, okay. So 44 is the molecular mass of CO2. In this way you can solve the molecular mass of anyone, okay. So let's move on to the next topic, next on the basis of this solve the numerical part, okay. So how to solve if mass is given. So one question मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मास निकालने के लिए। सपोज करो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे पास क्या गिवन है, 8 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम ऑफ O2, फाइंड मोल। बताओ माय डियर स्टूडेंट, आपको 8 ग्राम क्या दे रखा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन, ओके। सो सी 8 ग्राम इज व्हाट, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्राम, यूनिट ऑफ ग्राम इज मास। तो 8 ग्राम आपका क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मास, क्या लिखोगे यहाँ पे मास, ओके। एंड यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, मोल, ठीक है। तो अब मैंने एक फॉर्मूला बता दे रखा है मोल का, अगर मास दे रखा है तो देखो
जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला मास में बता दिया है, मास दे रखा है तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आप लिख दो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी जस्ट मैंने मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया, मास कितना दे रखा है 8। मॉलिक्यूलर मास बताओगे आप लोग, ऑक्सीजन का है, यहाँ बता दो एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, यहाँ मैंने बताया वो फिर से रिवीजन करा देता हूँ 16। सो कितना है 2 है तो 16 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं 32, इसे सॉल्व करोगे 8 4 जा 32, 1/4 दैट इज 1/4 को अगर पॉइंट में लिखोगे तो क्या होगा 0.25। सो याद रखना मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, नो ग्राम नो मिलीलीटर, सो मोल को मोल में ही लिखेंगे। तो मोल कितना आ गया आपका 0.25 मोल। ओके, सो ये एक तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, so next question I am giving one more question, so you solve it by own। okay, so आप खुद से इसे सॉल्व करो। so question that one is 1 point, second question 1.6 kg of SO2 find mole। चलो देखते हैं कितना जल्दी कौन आंसर लाता है, बताओ आंसर क्या है आप लोग का, प्लीज सॉल्व इट। okay, we have only the 2 minutes, so solve it, anyone? Anyone who got the answer? Anyone from the class? प्लीज बताओ यार, आप लोगों ने जल्दी बताओ, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आंसर आया सबका? चलो चलो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो आप आपका क्या दे रखा है 1.6 kg दे रखा है। सबसे फर्स्ट क्या करो आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए, क्योंकि क्या दे रखा है मास दे रखा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या दे रखा है गिवन लिख लो, मास यहाँ पे दे रखा है 1.6 kg। बट ध्यान देना एक चीज, मास हमेशा ग्राम में होती है। ओके, तो केमिस्ट्री में जब भी हम लोग लेंगे मास को ग्राम में लेंगे, तो यहां से केजी को ग्राम में बदल लो तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3000 ग्राम होती है 1 केजी में। तो यहां से कितना लिख सकता हूँ इसे सॉल्व करके 1600 ग्राम, ये आपकी मास हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगी इसका जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर मास SO2 का देखो, सल्फर का मैंने बताया था अभी जस्ट क्या होता है 32, ऑक्सीजन में क्या होता है 16, 16 टू 2 दैट इज 32, 32 प्लस 32 बताओ जल्दी, 32 प्लस 32 दैट इज 64। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया 64। तो यहां से हम लोग मोल क्या निकाल लेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। प्लीज स्टेप फॉलो करोगे, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। सो मास यहाँ पे क्या आ गया आपका 1600 ग्राम। सो यहाँ पे मैं लिखा 1600 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया 64। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। ओके, सो 64, सो 16 4 जा 64 एंड 4 से 100 कितनी बार में जाएगी 25। सो मेरा यहां से आंसर क्या आ गया आपका 25 मोल। कितने का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द, ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसी के अनुसार आप क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द थर्ड सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड द मोल दैट इज केस 2। ओके, सो केस 2, अब केस 1 में मास गिवन होगा, देखो केस 2 में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर केस 2 जो है उसमें नंबर गिवन होगा, नंबर समझते हो आप लोग, नंबर मतलब लाख हो गया करोड़ हो गया। तो यहाँ एक हिंट ले लो, लाख लिखना है तो हम लोग लाख 1 लाख रुपीज नहीं लिख रहे हैं, मुझे कैश नहीं लेना है, इसको टर्म 10 की पावर समथिंग में लिखेंगे। ठीक है, सपोज 5 6 7 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर समथिंग दिया रहेगा, मतलब ऐसे इस टर्म में दिया रहेगा, तो आप क्या समझोगे क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है। क्या गिवन है, नंबर गिवन है। ठीक है, तो यही अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है सेकेंड केस में क्या दिया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ओके, सो अगर इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इज गिवन। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जस्ट मैंने आपको बताया वन मोर थिंग, पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम्स भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं एक कॉन्सेप्ट को, आयंस भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। ओके, सो अब मैंने बताया था एक मोल में कितने एटम होते हैं, जल्दी बताओ, मैंने जस्ट बताया था 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ओके, सो 6.023 इन 10 टू पावर 23 एटम्स क्या होते हैं आपका, ये एक मोल में होते हैं। ओके, सो यहां से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, दैट इज, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना दूं। देखो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लेना कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल क्या होगा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इन 10 की पावर 23, ठीक है। तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। तो चलो, मोल का सेकंड फार्मूला क्या बन गया बताओ जल्दी एक बार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 10 टू पावर 23, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो मैं राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम, फाइंड मोल, फाइंड मोल। चलो बताओ मुझे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो क्या है, इतना एटम्स ऑफ हीलियम दे रखा है, ठीक है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे मोल का, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है क्या, नहीं, अभी जस्ट बताया क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, नंबर इज गिवन। ओके, सो यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ नंबर, दैट इज मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो अभी ऊपर ऊपर लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 26। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या होता है आपका 10 की पावर 23, मैंने लिख दिया 26। ओके, सो ये क्या होगा आपका 6.0 10 की पावर 23। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दे रखी है 6.022 10 की पावर 26, यहाँ लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 26, नीचे क्या दे रखा है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो माय डियर स्टूडेंट, सो हियर क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल है इसे आप लोग हटा सकते हो, चाहे इग्नोर कर सकते हो। देखो, सो 6 दैट विल कैंसिल आउट। ओके, सो यहाँ क्या आ गया 1, और आपने 9th 10th में कहीं भी पढ़ा होगा तो ये तो 1 आ गया, 1 into हो गया। अब देखो आपने पढ़ा होगा 9th में एक प्रॉपर्टी, जानो, अगर 10 बेस सेम है, बेस सेम है, अगर वो डिवाइड में है तो उसका पावर क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, तो 10 की पावर a है और डिवाइड में 10 की पावर b है, तो इससे क्या होता है 10 की पावर a माइनस b, शायद ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर a 26 हो गया, b 23 हो, तो क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर a माइनस, ओके, सो a माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन, सो 26 माइनस 23, सो यहां से माय डियर स्टूडेंट क्या आंसर आएगा 1 इंटू 10 की पावर 3 मोल, ठीक है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट, योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन, इफ मास इज गिवन to apply the then for apply the formula of mass to find the mole, if number is given so apply the formula of a number to find the mole। Okay, so one question that is given to you, so you solve it। Okay, see that question, write down the question। Okay, so question is 3.011 into 10 की पावर 21 molecules of
मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ओके, सो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी जिसको समझ में आ गया उसे सॉल्व करिएगा, आंसर बताना मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 2 हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप 3। ओके, देखो टाइप 3 क्या है, ठीक है। अब केस 3 आता है। केस 3 में क्या है, पहला तो देख लिया, क्या देखा जल्दी बताओ। पहला क्या देखा हमने, मास गिवन है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल, थर्ड क्या है, वॉल्यूम इज गिवन। ओके, इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन, चाहे वॉल्यूम दे रखा हो चाहे वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो वहां से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या होती है, कोई भी मुझे बताओ वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है, देखो वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डीएम क्यूब भी होती है, ठीक है। अब ये सब वॉल्यूम का यूनिट है। सो आपको किसी में देगा, आप उसको लीटर मीटर में लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। शायद आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन आपका 11th क्लास में गैसेस स्टेट पढ़ोगे वहां पे भी इसकी काम आएगी। तो प्लीज, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट चैप्टर आपको आता है तो कोई भी चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से आप लोग पढ़ो, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, लीटर दे रखा है, मिलीलीटर दे रखा है, मीटर क्यू, सीएम क्यू एंड टीएम क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज लिख सकता हो, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ क्या लिख देता हो, 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 सीसी को, ठीक है। तो अगर मुझे मिलीलीटर, देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर 1000 सीसी, तो क्या मैं सीसी को एमएल से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब उसके बाद ये रिलेशन होता है, उसकी इक्वल टू 1 डीएमक्यू, और 1 लीटर में कितना डीएमक्यू होता है, 1 डीएमक्यू। और ये इक्वल क्या होता है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यू होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यू। ओके, सो ये रिलेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके समझ लो, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 सीसी, 1 डीएमक्यू एंड 10 की पावर -3 मीटर क्यू। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, याद है वो। तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, अगर आपका जिस तरह एक मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह एक मोल में 22.4 लीटर एट एसटीपी। एक मोल में क्या होता है आपका, 22.4 लीटर एट एसटीपी, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो वी राइट हेयर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या होता है आपका एसटीपी का मतलब, ठीक है। तो अब यहां से मोल का जो फॉर्मूला आएगा, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो दे रखा होगा, चाहे फाइंड करना होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन, नीचे क्या लिख सकता हो आप लोग, 22.4 लीटर। अगर ऊपर वॉल्यूम लीटर में है तो नीचे भी लीटर में, अगर इन केस वॉल्यूम ऊपर मिलीलीटर में है, सो माय डियर स्टूडेंट टेक केयर। Okay, so you will take here in milliliter, that when you multiply liter with the 1000, you will get 22,400. Okay, so this one is the milliliter. So mole is given volume upon 22,400 milliliter. Either you apply in the liter or the milliliter, depends upon the what is given in the question. If question is given in the form of meter cube, so firstly you convert either in the liter or in the milliliter. Okay, then apply the concept. Okay, so let's move on to one question. Okay, so how to apply this concept, let's see. We have given a 11.2 liter of O2 gas, 11.2 liter of O2 gas, find mole. So my dear student, बताओ 11.2 liter, सबसे पहले your first task is to recognize what is given. Okay, so identify it, what is given. So mass is given, number is given, here mole is given, here volume is given. See my dear, so here what is given, here you can see that here volume is given, here volume is given. So
you identify that volume is given, so next task is to find the what is the unit of volume. So liter, fine, it's okay. So when it is given in the liter, it's okay, so we can apply the given volume of 24.4 liter. If it is in the meter cube, dmq, so firstly you have to convert in the liter, then apply the formula. Okay, so we write the formula, that is mole is equal to given volume. Okay, so given volume upon 22.4 liter. Okay, so see what is the volume. So volume that is given 11.2 liter upon 22.4 liter. Okay, so that liter cancel out, point cancel out, so 112 and 224, that will 1 by 2. So from this where we will get the mole that is equal to 1 by 2, that is 0.5 mole. ओके 0.5 मोल इज द आंसर. ओके, सो ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये मोल का कैलकुलेशन. एंड आज हमने जो भी डिस्कस किया, व्हाट अबाउट द व्हाट इज मोल, ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोल. ओके, सो मोल का एप्लीकेशन भी देखेंगे नेक्स्ट पर. तो हम लोग आज सीखा मोल का कैलकुलेशन. सो क्विक रिवीजन फॉर द 2 minutes. लेट्स सी व्हाट एवर बी डिस्कस्ड. ओके, व्हाट एवर बी डिस्कस्ड from today lecture. Okay, so this one is the today lecture, that is mole concept. So mole definition, that is amount of substance, that particle 12 gram of C12 isotopes. So isotopes क्या होता है, जो सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर. सो तीन आइसोटॉप्स कार्बन का मैंने बताया 12, 13 एंड 14. ओके, और यहाँ पे मैंने ये क्या है, ऑब्जर्वेशन से आया, मास ऑफ एक एटम जो C12 का इतना है, तो फिर इतने ग्राम में इतना है, सो इतने ग्राम में कितना हो जाएगा. तो यहाँ से मैंने फाइनली निकाला 6.02 10 to the power 23. ये कैलकुलेशन नहीं भी आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको याद नहीं चाहिए. 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.02 थे 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर, उसे एवोगाड्रो नंबर इन्हें बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट बात किया कैलकुलेशन ऑफ मोल. अगर मास गिवन है तो मोल इज इक्वल टू मास फॉर मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट हमने बात किया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है. मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए स्टेप आपको बता दिया. उसके बाद मैंने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, और सेकंड हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ये दो क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया. देन हमने क्या किया, प्रोसीड. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 10 to the power 23. अगर ये भी गिवन हो गया, तो अगर आपका वॉल्यूम, थर्ड क्वेश्चन क्या केस किया हमने, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का अपने यूनिट पकड़ लो, यूनिट से यूनिट का कन्वर्जन कर लेना, क्योंकि एक मोल में क्या होता है, या तो 22.4 लीटर एसटीपी होता है, नहीं तो क्या होगा आपका 22,400 ml एट एसटीपी. ओके, सो मोल का या तो गिवन वॉल्यूम हम 22.4 लीटर और 22,400 ml. ओके, सो इसमें से कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्विक रिवीजन भी कर दिया, आपको सब समझ में आ गया. कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो. ठीक है, ओके, सो अब ओके, थैंक यू.